So first of all, Karan and Priyanka, welcome to IWM Buzz. It gives me immense pleasure and joy to talk about the success of Udaria as a show. You guys have been fantastic. Welcome on the show. Karan, you have been doing some great work in the past as well. Wish you all the best for this one ahead. But tell me एक चीज overall अगर मैं आप दोनों को पूछूं, like the experience so far for you, I think it's relatively new, Karan. But for Priyanka, overall, how do you look at this entire journey? Because the love and adulation that has come from the audience is absolutely organic and natural. You can just feel it. So if I talk about my journey, actually बहुत interesting रही है. मुझे उडारियां कैसे मिला था वो भी बहुत ही सडन था. मतलब मैंने सुबह ऑडिशन दिया, रात को they were like come to Chandigarh. I was like for mock shoot. They were like no, you're logged. मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ. मुझे लगा कि वो बुला रहे हैं ऐसे ही और फिर मॉक शूट करेंगे. तो जर्नी शुरू से ही मेरी बहुत इंटरेस्टिंग रही है. मॉक शूट ही चल रही है आपकी अभी तक. एक्चुअली 300 एपिसोड की मॉक शूट कर ली. क्योंकि अचानक से आपने फाइनल कर दिया रातों रात में, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ. तो मैं आई चंडीगढ़ और यहाँ से फिर उडारियां की जर्नी शुरू हो गई. देन दे टोल्ड मी कि नो, यू आर फाइनलाइज. आई हैव आस्क्ड देम ट्वाइस थ्राइस कि आप मॉक शूट के लिए बुलाया तो मुझे बता दो. तो दे वर लाइक नहीं, आप फाइनल हो. क्योंकि वो फतेह के लिए मॉक शूट करते थे एक दो जगह. लगा कि शायद वो उसमें हमें भी टेस्ट करेंगे, बट दे वर लाइक नो नो, यू आर कंफर्म. तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. और उसके बाद में तो मुझे उडारियां का सरगुन मैम ने इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया था मुझे. तो यहीं से बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी शुरू हो गई थी मेरी. और उसके बाद में हमने उडारियां शूट स्टार्ट किया. इट वाज रियली ग्रेट. पर स्टार्टिंग में हमें टीआरपी से वी वर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड कि यार टीआरपी से नॉट रियली हैप्पी कि इतना कम क्यों आ रहा है. बट ऑल थैंक्स टू ऑडियंस. इतना प्यार उन्होंने फाइनली उडारियां को दिया है कि हमने बहुत अच्छी उडारियां ले ली है. सो वी आर रियली हैप्पी. और जर्नी तो बहुत अच्छी रही है. इतनी अच्छी टीम हमें मिली है और अब अंगद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. तो काफी अच्छा रहा था. अभी भी क्या बात है. करण, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड टू दैट? पहले ये जर्नी की स्टोरी मेरे लिए भी नई थी एक्चुअली. मुझे मॉक शूट वाली पता थी पर इंस्टाग्राम वाली नहीं पता थी. तो कुछ तो फिर न्यू इन्फॉर्मेशन. इंस्टाग्राम वाज लाइक कि पहले तो सरगुन मैम का आया था तो मुझे पता था कि जेन्युइन है. इट रीइंस्टेट माय बिलीफ के मोस्ट वंडरफुल. एंड वन मोर थिंग, सॉरी, उन्होंने मेरी रील देख के मुझे इंस्टाग्राम पे ब्रो बाय मेरे को रील बनानी है. अभी आई एम वेरी बिजी. Now this line is going to be an inspiration for so many content creators out there. हमारे reels देख के भी we can get reels से roll. That's actually the thing, tagline. They always tease me reels कितने reels बनाते हैं. like देखो reel से मुझे इतना अच्छा शो मिला है उडारियां. Reels से अगर काम मिल जाए तो why not? But Karan, you were saying something. What would you want to add to that? Journey. हाँ मैं क्या, it reinstates my belief के most wonderful things happen in life suddenly. True. And unexpected, unplanned. तो ज़्यादा planning में नहीं. Yeah. You know, what I would like to ask you right now, Karan, is that you're coming in a show which is already doing some great work. So of course you already have a I would say fan following in your own, or you have your own legion of fans as well. That's there. And now you're coming into a show which has got its own fan base. So whenever you're coming into a show compared to starting a show from the very beginning, how do you see the challenge in terms of getting accepted by the audience? Because when you are starting, right from the very first episode, you either get accepted or you don't. But when you come in the middle, it's a different thing altogether. How do you look at it? Definitely, it's not a different thing as much as it is more challenging to complement that team. Sometimes it is easy to join a team and not be part of it much. You come, you go. पर अगर कोई चीज आप हेवी ड्यूटी करने की कोशिश करते हैं, जैसे आप हीरोइन के साथ ही दूसरा ट्रैक बन रहा है, तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे दिमाग में ये होता है कि कोशिश करके कुछ ऐसा बनाया जाए, ऑलरेडी फतेह और तेजो की केमिस्ट्री की बातें होती हैं, रोमांस की बातें होती हैं, उनकी मस्ती की, नोक-झोंक की, हर चीज की बातें होती हैं. आपको उसमें एक एलिमेंट्री चीज ऐड करनी ताकि आपको भी देखने का एक मौका दिया जाए और ऑडियंस बोले कि हाँ चलो यार इसे देख के भी अच्छा लगता है, इट्स नॉट बैड. तो उतना अचीव करना मेरे जहन में हमेशा रहता है कि कुछ एंटरटेनिंग सा, फन सा क्रिएट किया जाए, जिसे देख के लोगों को कम से कम मजा आए, मिनिमम है कि मजा आए,
चाहे फिर उनकी फेवरेट्स कुछ भी हो, लेकिन कम से कम ये कहना चाहिए कि देख के मजा तो आता है। Absolutely. You know, Priyanka, this question is very valid for you because since you've been there from the very beginning, you know, of course, once the show gets a fan base, of course, you know, people are coming in, a lot more people are only getting added. You know, you're not losing followers or, you know, fans, you're only adding them later. But what's important is कि जितने लोग अगर आपको पसंद करते हैं, तो you need to constantly, you know, reinvent yourself in multiple ways as well. Because if you see content on television, last 10-15 साल से काफी change हुआ है, and now people are a lot more street smart in terms of what they want to believe and what they want to not. How do you as an actor ensure that you keep reinventing and renovating so that जो existing audience है, you don't lose out on that and they don't maybe feel monotonous? So basically, okay, 10-15 साल पहले की बात करूँ तो मैं तो तब तो स्कूल में थी, तो मुझे इतना कितना चेंज आया है वो मुझे आइडिया नहीं है। बट हाँ, मैं भी स्कूल में बट मेरे लिए तो ये फील हमेशा से बहुत ही एंटरटेनिंग रहा है और एक्साइटिंग रहा है, नई चीजें देखने को मिलती हैं। तो मुझे नहीं पता कि कितना चेंज आया उस टाइम से इस टाइम तक, बट हाँ, इफ आई टॉक अबाउट माय ऑडियंस कि मैं उनको कैसे हमेशा अपने साथ रखूं, तो मेरा सिर्फ एक फंड है, बी रियल। आप जितना रियल होगे, आपको कुछ भी फेक होने की जरूरत नहीं, प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं कि आई डू दिस, आई डू दैट। आई एम नॉट एट ऑल लाइक दैट। मैं मतलब हमेशा से, हाँ, जैसे मैं हूँ रियल लाइफ में, मैं इवन थ्रू सोशल मीडिया या व्लॉग्स, उनके थ्रू मैं मेरे ऑडियंस को यही दिखाना चाहती हूँ कि भाई बी जस्ट बी रियल, आपको कुछ भी फेक करने की जरूरत नहीं है। और कैरेक्टर में भी मैं बिल्कुल ऐसे ही अपने कैरेक्टर से भी, जैसे लोग काफी अटैच हैं, तो उसमें भी ये है कि तेजो जैसी है, मतलब तेजो को अब मैं समझ गई हूँ, तेजो मेरे अंदर बसी हुई है, तो बस मैं तेजो, हाँ, रियल पर्सनैलिटी सबके सामने है। तो हाँ, दैट्स हाउ मेरी ऑडियंस मुझसे बनी हुई है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसे बने रहें। So that's what I'm asking, you know, that how do you ensure as TV actors you remain secure, because it's a huge team, everybody is getting equal amount of attention. Did you actually think about the security part? Because just do your job here with most honesty. कोई भी चीज आपके कंट्रोल में ज्यादा है नहीं. You know, the limelight is being shared by everyone. At the end of the day, everyone loves that. Yeah. I think so. That's what you both have to say. Actually, in my case, I तो get happy. मतलब अगर मेरे आसपास के लोग जिन्हें मैं actually we all have family, तो उनको भी अगर उतना ही प्यार मिलता है, I really get happy about it कि यार लोग सच में हर किसी को, जैसे सत्ती जो मेरी मम्मी प्ले कर रही है, उनको अगर प्यार मिल रहा है, तो I'll be happy about it. I genuinely have an approach कि आप अपना काम ईमानदारी से और हार्डवर्क से कर लो, बाकी जिसके शहर में जो आना है वो आ जाता है, कोई ऐसा स्कीम करके या इनसिक्योर होके किसी का आज तक भला हुआ नहीं, होना भी नहीं। I think that's a very fair point. Thank you so much guys for talking to us. Wish you all the best for all your future endeavors. All the best. Take care. Thank you. Bye. God bless. Bye. Thank you.